گردی ارشد شریف تیری بدماشی عدیل راجہ تیری بدماشی انشاءاللہ چلنے بھی نہیں دیں گے. آج سے پہلے یہ چھوٹے قد والا چھوٹا بونا آدمی جس کا قد بھی چھوٹا ہے اور جس کا ظرف بھی کل ہمیں معلوم ہوا گوادر کے اندر کہ یہ ایسا گھس بیٹھیا اور ایسا کم ظرف شخص جس نے 1 سال تک کچھ باتوں کو اپنے سینے میں چھپائے رکھا اور کل اس کا بدلہ ایک نہتے شخص پر دیکھ کر اپنی ٹیم کے ساتھ جیسے جانور کسی پر حملہ کرتے ہیں اس طرح اس بونے نے اور اس کے بونے پروڈیوسر نے جن کا قد بھی چھوٹا ہے اور جن کا ظرف بھی چھوٹا نکلے ہیں انشاءاللہ اگر ان کی بدماشی چل رہی تھی ایئر وائے میں یا میڈیا میں تو اب نہیں چلنے دیں گے. اپنے خیالات کا اظہار کریں گے عابد اندریب صاحب. میں نے اب تک تمہارے قصیدے لکھے آج اپنے ہی نغموں پہ شرمندہ ہوں. اپنے فن کے تقاضوں سے ہوں منفعل اپنے فن کے تقاضوں سے شرمندہ ہوں. صدیق جان ایک ناتواں انسان ضرور ہے لیکن ارشد شریف تم نے جس گنڈا گردی کا کل مظاہرہ کیا ہم مانتے ہیں کہ ہم نہتے ہم مضافات سے آئے ہوئے ہیں ہم سیلف میڈ ہیں تمہارے جتنے وسائل تمہارے جتنے تعلقات نہیں ہیں لیکن کل سے ٹویٹر پہ یہ ثابت ہو گیا کہ صدیق اکیلا نہیں ہے. تم نے جس بدماشی کا مظاہرہ کیا جس کم ظرفی کا مظاہرہ کیا جس چھوٹے پن اور گھٹیا پن کا مظاہرہ کیا 1 سال سے تم اپنے سینے کے اندر وہ بغض لے کر بیٹھے رہے. 1 سال پہلے یہ لڑائی میں کچھ آپ ناظرین کو بھی بتاؤں کہ 1 سال پہلے کی نہیں ہے بلکہ یہ ثاقب نثار کے دور کی لڑائی ہے. جب تم نے غلط حقائق کو رپورٹ کر کے ثاقب نثار کے پاؤں پکڑے تھے عدالت میں جا کر تو صدیق جان نے اس کو رپورٹ کیا تھا. تم نے صدیق جان کو بلاک کر دیا. آج تم انسانی حقوق کی بات کرتے ہو ٹی وی پر بیٹھ کر. تم اتنے کم ظرف اتنے چھوٹے اور بزدل دشمن ہو. تم نے ایک ناتواں انسان پہ وار کیا. تم نے اس کے اکیلے پن کا فائدہ اٹھایا. تم نے یہ سوچا کہ یہ مضافات کا ہے اس کا کوئی والی وارث نہیں ہوگا. ہم مانتے ہیں ہمارے پیچھے کوئی ملک ریاض نہیں ہے. ہم مانتے ہیں کہ ہم کسی ملک ریاض کے ٹاؤٹ اور آرا کار نہیں ہیں لیکن ارشد شریف یہ تمہارا جو گھٹیا پن تھا کل سے ٹویٹر پہ اریسٹ ارشد شریف ایک ٹاپ ٹرینڈ بنا ہوا ہے. اس نے یہ ثابت کیا کہ صدیق اکیلا نہیں ہے. ہم مانتے ہیں کہ ہم گاؤں کے لوگ ہیں. ہم مانتے ہیں کہ ہمارا یہاں اتنا ریسورس نہیں ہے لیکن ہم تمہارے خلاف ہر فورم پہ جائیں گے. تم اگر سچے تھے تم صدیق جان پہ ہاتھ اٹھانے کے بجائے عدالت میں لے کر جاتے. صدیق جان نے ایک بات کی تھی ہم خاندانی لوگ ہیں ہمیں وہ زیب نہیں دیتا کہ تمہاری اس چمڑی کو یہاں ادھیڑے تمہارے اس لباس کو یہاں ہم اتارے. ہمیں یہ زیب نہیں دیتا. شہر کا شہر جانتا ہے ہمیں بھی پتا ہے تم کس کماش کے لوگوں. یہ مشکل نہیں ہے ہم یہ کر سکتے ہیں. ہمارا ظرف ہے کہ ہم کچھ بھی نہیں بولے. صدیق پہ تم نے حملہ کیا اور تم نے اس کو لیک بھی کروایا. یہ صدیق کا ظرف ہے کہ اس نے ایک لفظ بھی نہیں بولا ابھی تک. اور کچھ صاحبزادیاں فرما رہی تھی یہ کیسا احتجاج ہے صدیق کے گھر والے نہیں بول رہے. کدھر ہے صدیق کا بھائی؟ صدیق کا بھائی ادھر ہے ہمارے ساتھ ہے. وہ ساتھ ہے وہ پروٹیسٹ کر رہا ہے. شاہزیب ہمارے ساتھ ہے کہتی یہ کیسا پروٹیسٹ ہے کوئی FIR درج نہیں ہوئی. تمہیں شرم آنی چاہیے. وہ ایک ایونٹ کور کرنے کے لیے گیا ہوا ہے. اس کے موبائل دونوں توڑ دیے اور تم کہتے ہو یہ کیسا احتجاج ہے. فیملی والے بھی نہیں آ رہے کوئی بیان بھی نہیں آ رہا تو ہم کس کی مذمت کریں. تو بہت سارے ایسے کچھ بہتیے ایسے بیروتیے اور بھی ایکسپوز ہوئے جو آج ابھی چپ ہیں. کسی دوسرے صحافی پہ حملہ ہوتا ہے تو سارے منافق اکٹھے ہو جاتے ہیں. ایک صحافی ایک بڑا گنڈا ایک نہتے نظار انسان کی کمزوری اور اکیلے پن کو دیکھ کر اس پہ وار کرتا ہے. یہ اختلاف رائے کا تھا ہم اس کا احترام کرتے ہیں. دوستوں کا سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ. اس کے بعد میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آج کے احتجاج کا جو ایجنڈا ہے ہمارا کوئی پلانٹڈ ایجنڈا نہیں ہے بلکہ ہمارا یہ ایجنڈا ہے کہ کوئی بھی متشدد رویہ کوئی بھی دہشت گردی کوئی بھی انتہا پسندی
कोई भी गुंडागर्दी, कोई भी दादागिरी की भरपूर हम मजम्मत करते हैं। सिद्दीक जान साहब पे जो हमला हुआ उसकी मजम्मत करते हैं, ये हर किस्म की दादागिरी की मजम्मत करते हैं। अरशद शरीफ साहब जिन्होंने ये हमला किया उनकी टीम ने उसकी मजम्मत करते हैं। अदील राजा जिसने हमला किया उसकी मजम्मत करते हैं। ऐसे हर किस्म के दादागीर रवैये की मजम्मत करते हैं। इस हर किस्म की इस बदमाशी पर हम लानत भेजते हैं। और इस तरीके से जिस तरह से सिद्दीक जान ने अपना एक मकाम बनाया है, असल में ये वो जलन है जो लोगों को बैठने नहीं दे रही। असल में जो यूट्यूबर, जो लोग ये कह रहे थे कि हमें कोई सुनता नहीं है, जो लोग ये कह रहे थे कि हमारे अलावा कोई बोल नहीं सकता, भाई ये एक ट्रांजिशन है जो कि मेन स्ट्रीम मीडिया से डिजिटल मीडिया की तरफ आई है। ये कोई रवैया नहीं है, ये कोई तरीकाकार नहीं है कि किसी से किसी किस्म के भी इख्तलाफ राय की बुनियाद पर आप दादागिरी और बदमाशी करें। और इस तरीके से मैं कहता हूं कि वहां पे सिक्योरिटी कहाँ थी, मैं कहता हूं कि वहां पे लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज कहाँ थी। हम भरपूर आज एहतजाज करते हैं, एहतजाज के लिए हम यहाँ पे जमा हुए हैं। हम कहते हैं कि कानून और आईन के दायरे में उनको लाया जाए, ऐसे लोगों को जल्द अज जल्द गिरफ्तार किया जाए। शरीफ को गिरफ्तार करो, अरशद शरीफ को गिरफ्तार करो, अदील राजा को गिरफ्तार करो, अरशद शरीफ की टीम को गिरफ्तार करो, अरशद शरीफ को गिरफ्तार करो। दहशतगर्दी नामंजूर, 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 अरशद शरीफ की बदमाशी नामंजूर, नामंजूर, अदील राजा की बदमाशी नामंजूर, नामंजूर। अरशद शरीफ को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। ये टॉक शोज में बैठकर बहुत बड़ी बड़ी बातें करना और बहुत बड़े बड़े टॉलरेंस का सबक देना और बहुत बड़ी बड़ी पैगंबराना बातें करना ये आसान होता है। उस पर अमल करके दिखाना, जो कल आपने जिस तरह की हरकत की है सिद्दीक जान के साथ, उसकी भरपूर मजम्मत सिर्फ नहीं होनी चाहिए बल्कि इन लोगों की मुरम्मत भी होनी चाहिए। अरशद शरीफ को निकालना चाहिए एयरवाई से। इनको निकालना चाहिए। एयरवाई की एडमिनिस्ट्रेशन से हम कह रहे हैं कि इनको निकालें, अरशद शरीफ को निकालो। अरशद, मैं हैरान हूं उन तमाम बड़े बड़े सहाफियों पे कि उनको आज सांप सूंघ गया है कि जिस तरीके से मुतशद्दिद रवैया किसी के भी खिलाफ हो तो वो बहुत बार बहुत बोलते हैं। आज किसी ने एक सहाफी पर, एक यूट्यूबर पर इस तरीके से मुतशद्दिद रवैया, इस तरीके से दादागिरी और बदमाशी की है और उसको मैन हैंडलिंग की है, जिस तरीके से उनके साथ ये सलूक किया गया है, तो इस सलूक की सिर्फ एक मैं समझता हूँ कि मुजम्मत नहीं बल्कि कानून और आइन के जरिए इसकी मुरम्मत भी होनी चाहिए। इन लोगों को गिरफ्तार होना चाहिए, निकाला जाए। अरशद शरीफ को एयरवाई से निकाला जाए, अरशद शरीफ की टीम को निकाला जाए, अरशद शरीफ को एयरवाई से निकाला जाए, अरशद शरीफ को एयरवाई से निकाला जाए। आज मैं समझता हूँ कि अगर एआरवाई कोई अपने डेमोक्रेटिक कहता है कि डेमोक्रेटिक वैल्यूज पे अमल करता है, अगर एआरवाई को टॉलरेंस पे अमल करता है, अगर एआरवाई कहता है कि हम तो बर्दाश्त की पॉलिसी पर, हम तो अमन पे यकीन रखते हैं, तो उसको अरशद शरीफ और उसकी टीम को, अदील राजा को फिलफौर निकालना होगा। यही इसका एजेंडा है, उनको कानून और आइन के दायरे में लाना होगा, यही इसका एजेंडा है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। चलेगी नहीं चलेगी, अरशद शरीफ की बदमाशी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, अदील राजा की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, अरशद शरीफ की बदमाशी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, अदील राजा की बदमाशी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जाहिर है बदमाशी या गुंडागर्दी किसी के साथ भी हो, चाहे वो कोई सहाफ़ी हो, चाहे वो लिखता हो कहीं पे, कहीं यूट्यूब करता हो, फ्रीलांसर हो, कुछ भी करता हो, उसके साथ गुंडागर्दी नामंजूर है। आपकी पुरानी मुखासमत थी, किसी ने आपको एक्सपोज किया, किसी ने आपको ट्विटर के ऊपर जाकर बताया कि आप क्या चीज़ हैं, और उसके बाद जाकर आपने वो पुरानी मुखासमत पर प्रॉपर प्री प्लान, बाकायदा तौर पे जो वहाँ पे लोग मौजूद थे जिनसे हमारी बात हुई है वो यही बताते हैं कि ये पूरा प्री प्लान था। ये लोग वहाँ बैठे हुए थे, खाने के बाद ये वेट कर रहे थे और ये इसी ताक में थे कि सिद्दीक जान हमें कहीं अकेला नज़र आए तो हम उसके साथ ये रवैया अख्तियार करें। बहरहाल जैसे ज़फ़र भाई ने कहा, इस चीज़ की मज़म्मत होनी चाहिए। बहुत बड़े एंकर अपने आप को कहते हैं, सुपर प्रोड्यूसर कहा जाता है, वो तो सबको पता है किस तरह वो बने हैं सुपर प्रोड्यूसर। बहरहाल मैं उस चीज़ पे बात नहीं करना चाहता, लेकिन जो कुछ भी हैं अपने लिए होंगे। घोड़ा अगर उसका दुम बड़ी होती है तो वो अपने लिए होती है, किसी और के लिए नहीं होती। तो बहरहाल ये इस चीज़ की मज़म्मत है, कानून के दायरे में लाना ज़रूरी है और इस तरह का रवैया जो है वो बिल्कुल नामंजूर है। ज़फ़र भाई ने जिक्र किया, कल से हम लोग देख रहे हैं
कि बड़े बड़े जो दावेदार हैं, जो छोटी छोटी बातों के ऊपर अपोजिशन वाले पहुंच जाते हैं लोगों के घरों में, और ट्वीट शुरू हो जाती हैं और पूरी मजम्मतें शुरू हो जाती हैं। किसी भी ना किसी सहाफ़ती इदारे ने इसकी मजम्मत की है, ना किसी एंकर ने इसकी मजम्मत की है, ना किसी और सहाफ़ी ने इसकी मजम्मत की है, जो कि ज़ाहिर बात है हमारे लिए तो बड़े अफसोस की बात है, ज़ाहिर है, क्योंकि ज़ाहिर है उनके ऊपर भी वक्त आ सकता है। किसी के ऊपर किसी वफाकी वज़ीर ने अभी तक तो मजम्मत नहीं की, बहरहाल किसी पे भी वक्त आ सकता है, ज़ाहिर है ये तो एक गोल दायरा है, इसी में सारे घूम रहे हैं। हमारे पे आज तो कल किसी और पे भी आ जाएगा। बहरहाल इसकी जितने अल्फाज में मजम्मत की जाए, गुंडागर्दी नामंजूर, अरशद शरीफ की गुंडागर्दी, अदील राजा की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, अरशद शरीफ की बदमाशी नहीं चलेगी, अरशद शरीफ को गिरफ्तार करो, अरशद शरीफ को गिरफ्तार करो, अरशद शरीफ को गिरफ्तार करो। इस वक्त हमारे साथ जहां स्टूडेंट्स मौजूद हैं, सिद्दीक जान के साथ सॉलिडेरिटी के लिए जर्नलिस्ट मौजूद हैं, वहीं सिविल सोसाइटी के नुमाइंदे नूरानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे गुजारिश करेंगे कि ये भी अपने ख्यालात का इजहार करें और मीडिया के ये जो घुसपैठिए जिनके सामने अभी हम खड़े हैं इनको एक्सपोज करें। अरशद शरीफ तेरी बदमाशी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, अदील राजा तेरी बदमाशी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, अदील राजा तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, अरशद शरीफ तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तमाम अहबाब का मशकूर हूँ कि एक नौजवान अज़्म हिम्मत का पैकर सदीक जान, जिसने अपनी मेहनत से बहुत कुछ बनाया और इस मुआशरे के लिए बहुत कंट्रीब्यूट किया, उसको कुछ गुंडागर्द अनासर ने तशद्दुद का निशाना बनाया। वो शायद काफ़ी अरसे से अपनी इस प्रोफेशनल जेलसी का वो उसका बदला लेना चाहते थे, और वो उसी हसद बुग़्ज़ की वजह से उन्होंने सदीक जान को तशद्दुद का निशाना बनाया, गुंडागर्दी का निशाना बनाया। हम इसकी भरपूर मजम्मत करते हैं। कल से तो दिल ये चाह रहा था कि कोई नहीं, जो हुआ वो हुआ, तो ये मैदान लगा है तो फिर लगेगा, तो फिर हम भी ठीक है उसी तरह से जैसे वो कर रहे हैं वैसे ही हम निभाना जानते हैं। लेकिन सदीक जान साहब का हम इंतज़ार कर रहे हैं, वो वापस इस्लामाबाद आ जाएं, तो फिर उसके बाद हम अगला लाए अमल बनाएंगे कि क्या करना है। उस वक़्त तक ये एक जमहूरी जितने भी रवैये हैं इनका मुजाहरा करना चाहिए। हमने एहतजाज किया उस गुंडागर्दी के ख़िलाफ़, हम इकट्ठे हुए और हम मुतालबा करते हैं ARY न्यूज़ से कि वो ऐसे गुंडागर्द अनासर को अपनी सफ़ों से निकाले और सदीक जान पे जो जुल्म, जो तशद्दुद किया गया है उसका मदावा किया जाए। हम ARY की टीम, ARY न्यूज़ और उसके जितने भी मालिकान हैं, इंतज़ामिया है, उससे ये मुतालबा करते हैं कि ऐसे गुंडागर्द अनासर जो सहाफ़त में घुस आए हैं और वो अपनी प्रोफेशनल जेलसी को एक सामने लाते हुए उसका इजहार तशद्दुद से करते हैं, उनको रोका जाए और इनको ARY से हर सूरत में निकाला जाए। अरशद शरीफ को गिरफ्तार करो, 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 राजा को गिरफ्तार करो, राजा को गिरफ्तार करो। अरशद शरीफ की बदमाशी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, राजा की बदमाशी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, राजा की बदमाशी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अरशद शरीफ और उसकी टीम को निकाला जाए, गिरफ्तार करो। हमारा मकसद यहाँ पे आने का यही है कि ARY अरशद शरीफ का बाइकाट करें, उसको ARY से निकालें, हमारे मुतालबात सुने जाएं, और ख़ास तौर पे अदील राजा जिसने बदमाशी की है, जिसने पर्सनल ग्रज निकाला है सदीक जान के खिलाफ, और ये लोग कहते हैं कि FIR नहीं करवाई। पाकिस्तान की खातिर आज हम यहाँ पे खड़े हैं, सदीक जान पाकिस्तान की खातिर वहाँ गया, इसी वजह से FIR नहीं करवाई गई। आज सदीक जान वापस आ जाएगा, वापस आने के बाद इस बात का फैसला होगा कि FIR होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। लेकिन अभी यहाँ आने का मकसद सदीक जान के साथ इज़हार यकजहती है। आइंदा हम बाइकआउट भी कर सकते हैं, बाइकआउट की तरफ भी जा सकते हैं। आज तो हम चंद लोग आए हैं, इससे ज़्यादा भी आ सकते हैं। सदीक जान साहब के साथ हमारी हमदर्दियाँ, हम यहाँ पे इस वजह से हैं। बहुत शुक्रिया।